Bar graph is a method of interpreting data pictorially. The last topic which we studied was the pictograph, but pictograph में एक drawback था. The drawback was the scale. ठीक है, जो भी हमने examples देखे थे pictograph में, we had marked certain scale on that pictograph. For example, अगर आपको 100 और थाउजेंड्स में किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना था. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पूरी सोसाइटी में सेंसस किया कि उसमें कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, और जो हमारा डेटा था वो लैक्स में एंड थाउजेंड में चला गया. तो ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इसका हम स्केल बना. अगर मैं एक बॉय पे भी अगर मैं 1000 या 100 लिखती हूँ, then also I have to draw many scales. I have to draw 100 people, 100 faces to represent the data if we are representing the data pictograph में. Okay, so to overcome this problem, हमने एक और मेथड यूज किया टू रिप्रेजेंट द डेटा. दैट इज द मेथड इज नोन एज योर बार ग्राफ. इसमें क्या करते हैं, वी टेक टू एक्सेस. ठीक है, these are the two axes. Okay, this axis is known as y axis and this axis is known as x axis and this standing axis is known as y axis. ठीक है, अब इनका नेम स्पेसिफिकली हमने x और y क्यों पढ़ा, देयर इज अ ज्योमेट्री बिहाइंड दैट जो आप आगे जाके पढ़ोगे इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बट फॉर नाउ you have to understand that there are two axes on which we plot the graph. ठीक है, आई होप कि आपने ग्राफ के बारे में पहले सुना या पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस. Isn't it class 6? Yes. Okay, so that about these two axes you must be already aware that ki bar graph mein we have two axes x and y. Okay, if you are not aware, then also we'll study afresh from in this class. So I was telling that bar graph is a method of interpreting data. This method is much more useful than the previous method, that is your pictograph. In bar graph we have two axes. The sleeping line or the horizontal line is your x-axis. The standing or the vertical line is your y-axis. And now on these two axes we will plot our data. So let us consider an example and see कि कैसे हम bar graph से there will be two kind of question. The first kind of question in which जो आपको डेटा दिया रहेगा उससे इंटरप्रेट करके यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ. सेकंड क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया रहेगा उसमें से इंटरप्रेट करके you yourself have to draw the graph. Okay, so both the cases we will see. First case में certain data will be given to us and we plot the bar graph accordingly, and in second case bar graph will be given to us and we'll interpret the data from that bar graph. Okay, so अब इन एक्सेसिस पे अगर हमें एक टेबल गिवन है, लेट्स से दिस इज द टेबल. Okay, we'll take a very small example. This is the table. Let's say कि हम अपने प्लेयर्स का नाम ले लेते हैं दैट जो भी रिसेंटली हमने आईपीएल देखा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट आईपीएल ओनली. ठीक है, तो रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर. तो हियर यू हैव रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स और ये उनके नंबर ऑफ रन्स थी. ठीक है, तो लेट्स नेम द फर्स्ट प्लेयर एज केएल राहुल. सो ही स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स, ही स्कोर्ड 100 रन्स फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, देन अनदर प्लेयर रोहित शर्मा स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स, ही स्कोर्ड 200 रन्स. Then another player, let's say, name any player from this team. Any player of your choice. Class 6, any player of your choice. Let's say Dhoni. Okay, Dhoni scored the maximum run, that is your 300. So you have three data given to few certain data given to you. Here in the first table you have the name of the players and in this second table you have the numbers of runs scored by those players. तो अब आप इसमें प्लॉटिंग कैसे करोगे, जो भी वैल्यू whenever you plot any value on this x axis वो वैल्यू इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. You might get confused कि हम नेम ऑफ द प्लेयर्स को x एक्सिस पे रखें या नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स को x एक्सिस पे रखें. सो ऑलवेज प्लॉट द जो ये x एक्सिस है उस पे हमेशा वो वैल्यू प्लॉट होगी which is
इंडिपेंडेंट मतलब जो प्लेयर्स के नाम है दे आर नेवर गोइंग टू चेंज, ठीक है। जो राहुल है वो चाहे किसी भी मैच में खेलेगा, ही विल स्कोर रन्स, या तो वो किसी मैच में 0 रन बनाएगा या 100 रन बनाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ओनली दिस वैल्यू विल चेंज बट हिज नेम विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं होता कि हर एक मैच के साथ प्लेयर का नाम बदल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, जो वैल्यू फिक्स्ड होती है, हमेशा के लिए वो वैल्यू एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है। तो here you will write the name Rahul, here you will write the name Rohit, okay, I am writing RO for Rohit and here you will write Dhoni, ठीक है। यहाँ पे आप स्केल बनाओगे, ठीक है। स्केल अब जैसे 100 से लेकर 300 तक हमारे पास वैल्यूज हैं, तो या तो आप 0 से लेकर अपना स्केल बनाओ, या फिर आप 10 से बना सकते हो, या आप 100 से भी शुरू कर सकते हो। बट मेक श्योर जो बार ग्राफ होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इट इज ऑलवेज सेम। तो फॉर दैट यू हैव टू मार्क अ स्केल। तो यू विल राइट ऑन वाई एक्सिस, या फिर जस्ट यू विल राइट स्केल, जो भी आपका है। हाउ विल यू राइट द स्केल? या 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ, this is your scale। 1 unit length is equal to let's say 100 runs, 1 unit length is equal to 100 lengths, okay। So now in front of you there is a white screen, but whenever you will plot this bar graph on the graph paper, ठीक है, it's a green color graph paper जिसमें बहुत सारे boxes होते हैं और हर एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो box होता है उसकी एक value होती है। तो I cannot show the plotting of this graph on the paper, so I will prepare a separate video for that, जहाँ पे मैं आपको ये जो यूनिट लेंथ लिखी है उसका क्या मीनिंग होता है, that I will explain in that video itself, okay। So हमने for x axis we have marked the scale that 1 unit length is equal to 100 runs। So from here we will start 100, we have 200, we have 300 and so on and so forth। अगर हमारे पास और प्लेयर्स होते तो हम उनके रन्स को ऐसे प्लॉट करते। नाउ व्हाट यू विल डू, आप नेम देखोगे प्लेयर का और रन्स देखोगे, ठीक है। ये rectangular or horizontal boxes are plotted for this reason, to represent that this graph will represent that player Rahul had scored 100 runs। फिर उसके बाद we'll mark the runs for Rohit। Rohit has scored 200 runs। Then the third player is Dhoni। Similarly आप धोनी के जो उसने जितने भी रन स्कोर किए हैं उसको प्लॉट करोगे। तो दिस इज द वे द प्लॉटिंग इज डन इन केस ऑफ बार ग्राफ। दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पहले तो आपको किस एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज को प्लॉट करना, दिस यू हैव टू मेक श्योर। हमेशा एक्स एक्सिस पे वही वैल्यू प्लॉट होती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि in whatever match KL Rahul will play, his name will remain same, or even if the number of runs scored by him is changed in every match, ठीक है। किसी मैच में अगर उसने 100 बनाए, किसी में 110 बनाएगा, पर जो ये प्लेयर का नेम है दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो जो वैल्यू विल रिमेन सेम आप उसको यहाँ पे प्लॉट करोगे और जो चेंज होगी वैल्यू, ठीक है, वो you will plot on this y axis। Second most important thing is that you have to plot the scale। Scale is what? Scale is again very important in a sense कि वो scale आपको बताता है कि आपने जो ये gaps दिए हैं between these two numbers वो कितने difference के हैं, ठीक है। तो this scale is very important। उसके बाद just you have to use your scale और जिसने भी जितने run score किया simply आपको वैसी plotting करनी है। तो this is it about bar graph। Is that clear class? Class, is the topic clear? Class 6, is the topic clear? So today we were studying bar graph, जिसको मैंने पढ़ाया but आपने सुना ही नहीं। So I am repeating the topic again। This bar graph is another method of representing data pictorially। In the previous topic which we studied in data interpretation was pictograph, but pictograph में एक drawback या limitation थी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा लोगों पे data निकालना था तो हम अगर scale को अपना बड़ा भी कर लें then also हमें उतने लोगों को draw करना पड़ रहा था। और दूसरा drawback क्या था? दूसरा drawback ये था कि कोई हमें half value मिल जा रही थी। जैसे अगर हमारा स्केल 100 की रेंज का है
और हमें वैल्यू 372 मिल रही है। तो इस 370 को प्लॉट करना या ड्रॉ करना वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो दीज वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस प्रीवियस मेथड पिक्टोग्राफ। टू ओवरकम दीज मेथड्स वी अडॉप्टेड अनदर मेथड या वी इवॉल्व्ड अनदर मेथड व्हिच इज योर बार ग्राफ। नाउ अ बार ग्राफ में टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बार ग्राफ में द वैल्यू इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर. I'll show you the graph paper and how the plotting is done, how the scale we determine on the graph paper as well, but here also, but right now you have to study that from board itself. So I was telling that bar graph mein there are two axes. The sleeping line is in front of you is your horizontal line is your x axis, and the standing line is your y axis. So these are the two axes on which we will plot our data. And how we will plot the data, let us see. Suppose that we have a problem in front of us. I have write down the three names of the players who have scored maximum runs in the recent IPL match. ठीक है, तो KL Rahul was given the orange cap, I guess, so he scored 100 runs, the maximum. Then there was a player Rohit Sharma, he scored 200 runs. Then another player MS Dhoni scored 300 runs. Okay, so this data we have to plot pictorially or on the graph paper. For that दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो आपका स्केल होना चाहिए सही, दूसरी चीज है कि अगर ये भी आपको यू माइट गेट कंफ्यूज कि ये वाली वैल्यू हम एक्स एक्सिस पे डालें या ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे डालें, ठीक है। तो अवॉइड दैट एक चीज है कि जब भी आप ग्राफ बनाओगे इधर इन मैथ्स और इन फिजिक्स और इन योर हायर क्लासेस, मेक श्योर कि आप जब भी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज को प्लॉट करो हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो ये प्लेयर है केएल राहुल, ये अपने मैचेस को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये वनडे खेल सकता है, T20 खेल सकता है, टेस्ट मैच खेल सकता है, बट द नेम ऑफ द प्लेयर विल रिमेन सेम, ठीक है। ये चीज आपकी कभी चेंज नहीं होगी, द नेम ऑफ द प्लेयर, बट द रन स्कोर्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेयर माइट गेट चेंज, ठीक है। किसी मैच में उसने 100 रन बनाए, किसी मैच में उसने 50 रन बनाए, तो ये जो सेकेंड टेबल की वैल्यू है ये चेंज होती है, ये फर्स्ट टेबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो whenever you are plotting any value on the graph paper, make sure कि आप x axis पे हमेशा वो वैल्यू प्लॉट करोगे जो कि चेंज नहीं होने वाली, या आप ये कह सकते हो x axis पे हमेशा वो वैल्यू प्लॉट की जाती है जो सारी वैल्यूज y axis की x axis पे डिपेंड होती है। डिपेंड कैसे है? हम ग्राफ किस पे प्लॉट कर रहे हैं? नेम ऑफ द प्लेयर एंड द रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर। तो अगर हमें ये नेम नहीं पता होगा तो रन स्कोर्ड हम किसका निकालेंगे? तो in that manner this value is independent and the value which is plotted on the y axis is dependent। इतना हो गया। आपने फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल की, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ अस यहाँ पे तो सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, बट व्हेन वी सी दिस टॉपिक ऑन अ लार्जर एक्सपेक्ट, अगर हमारे पास 11 टीम की डेटा को प्लॉट करना है या फिर पूरे टूर्नामेंट में जितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है उनके प्लेयर्स ने कितने रन बनाए हैं उसको प्लॉट करना है, तो उसके लिए आपका जो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है उनके लिए एक पर्टिकुलर स्केल बनाना। स्केल कैसे बनाओगे? यू विल राइट ऑन y एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 रन्स। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू योर 100 रन्स। 100 से 200 में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 100 नंबर्स का डिफरेंस है। तो दिस ब्लॉक विल डिफाइन कि आपका जो ये डिस्टेंस है यूनिट लेंथ वो कितने रन्स की है। तो दिस जो स्केल हम प्लॉट करेंगे दैट इज फॉर योर y एक्सिस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे राहुल, रोहित और धोनी के नाम को लिख दिया, why? बिकॉज दीज एंटिटीज आर इंडिपेंडेंट। और इस वाले y एक्सिस पे हमने 100, 200, 300, 400 को प्लॉट कर दिया एंड दीज वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स। अब हम देखेंगे 100 यहाँ पे है, 200 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, ओके। तो केएल राहुल ने हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय केएल राहुल? 100 रन्स वर स्कोर्ड। रोहित शर्मा स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स? ही स्कोर्ड 200 रन्स। धोनी ने कितने रन बनाए? 300 रन बनाए, ओके। आप चाहे तो स्केल से इस तरह भी कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने ऊपर नीचे तो नहीं किया, ठीक है। तो इन दिस वे वी प्लॉट द वैल्यूज ऑन द बार ग्राफ।